We are deeply honored to welcome the dignitaries who had grandeur to Gusto 2026. Their presence is both a blessing and an inspiration. Please join us in the acknowledging presence of Professor Ramesh Chandragaur, Director of National School of Drama, NSD, Ms. Sheetala, Entrepreneur, Mr. C.H. Vijay Prakash, Director of Sri Prakash Synergy School. Your presence today makes this stage even more meaningful. We are grateful for the opportunity to host such eminent personalities. Ladies and gentlemen, welcome to an evening of thought-provoking theatre where stories don't just entertain, they awaken. Up next, we take you on a journey of charm, laughter and touch of jadoo. Tonight, we present a tale where pride meets illusion and where what appears grand may not exist at all. Welcome to the world of Jadoo Ka Soot. Our story begins in the kingdom of Arnakheda, where there lived a king with an extraordinary passion clothes, not just any clothes, but the finest, the most exquisite, the most sandar garments one could imagine. For him, fashion was not just a choice, it was an identity. One day, news arrives that King Deshbandhu of Bengal will be visiting as a royal guest, and instantly our king begins to worry. I must wear something truly unforgettable. Tailors are summoned from across the land: Kolkata, Punjab, Patna, Madras, Mumbai, but none can satisfy the king's desire for perfection. And just when hope seems to lost, three mysterious men arrive, clever, confident and full of promise. They claim that they can create a magical outfit so unique, so extraordinary that it can be only seen by the wise and worthy. Those who cannot see it, well, might not be the Samajhdar as they believe. The king is interviewed. Wow, kya baat hai. He welcomes them into the palace, provides them with wealth, comfort and complete freedom to begin their work. And thus begins the greatest illusion, where nothing is made and everything is believed. Days pass, the so-called tailors pretend to weave, stitch and design, but when the king comes to see his grand outfit, he sees nothing. But can a king admit that? No, for fear of appearing foolish, he convinces himself, yes, it's magnificent. And soon the moment arrives, the king wears his invisible suit and steps out with pride, ready to impress his people. A royal procession begins, full of grandeur and full of silence. The people watch, they whisper, they hesitate, because no one dares to speak the truth. After all, who would risk being called a fool? But truth has a voice, and sometimes it comes from the most unexpected place. A young boy steps forward and asks, the king isn't wearing anything at all. And in that one moment, the illusion shatters, the silence breaks, and the truth, simple and fearless, stands tall. What pride could not see, what fear would not say, innocence revealed. Kasut. सावधान! अर्नाखेड़ा के महाप्रतापी सम्राट राजा रेशम लाल प्रजा दरबार में दर्शन देने आ रहे हैं। कोई अपनी तरफ से कुछ ना बोले, ना मुंह खोले, जब तक राजा साहब की सवारी आती है। होशियार! महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। कैसे हैं आप लोग? सब्सिडी है महाराज। बेटा चौबदार,
जी महाराज। जा ये चोंगा बदल कर ला दे तो। जी महाराज। असल में मैं एक ड्रेस बहुत देर तक पहन लूं तो घबराहट होती है। महाराज। हाँ, अब अच्छा लगा मंत्री। ये वाला चोंगा कैसा है? ये तो भयंकर सुंदर है महाराज। नमस्ते। क्या हो गया मेरे बच्चों? गजब हो गए महाराज। इस साल इतने भयंकर बरसात हुई कि सब बह गए, सब मर गए। जो बच गए सो मर रहे हैं। तुमको क्या हुआ मेरे लाल? माय बाप, इस साल हमारे इलाके में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। पूरे इलाके में भयानक सूखा और अकाल पड़ा है। हम सब बहुत दुखी है महाराज। कुछ कीजिए महाराज। मंत्री। जी महाराज। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। खंडाला की राजा देशबंधु का दूत आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है। दूध को पेश करो। महाराज की जय हो। अर्नाखेड़ा के सम्राट महाराज रेशमलाल को प्रणाम और जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज, खंडाला के सम्राट महाराज देशबंधु अगली पूर्णिमासी को आपके यहाँ मेहमान बनकर आना चाहते हैं। सम्राट देशबंधु 7 दिन और 7 रातें बिताएंगे। आपके साथ फ्रेंडली फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करेंगे। वाह, हमारा कितना सौभाग्य है कि ऐसे महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। मंत्री, दूध के आराम की व्यवस्था करो। इन्हें ले जाओ। देखो भाइयों, सूखा और बाढ़ तो हर साल आते हैं, लेकिन खंडाला के राजा न रोज रोज आएंगे और न रोज रोज इतना सुंदर उत्सव होगा। इसीलिए थोड़े दिन सब्र करें। आप सब जाइए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। अच्छा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने महान खंडाला के महाराज से अपनी रक्षा करूं? हमारी रक्षा नहीं मालिक, रानी माँ की रक्षा करे। क्या हुआ तेरी रानी अम्मा को? रानी माँ के घुटनों में चोट लगी है। तेरी रानी को एक साथ इतनी सारी बीमारियां कैसे हो गई? रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी। इतने में टीवी से भूकंप दहाड़ा, बस रानी अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी रखने की? अरे मेरे राम, राजा के बाथरूम में टीवी लगा हो तो क्या मेरी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? जाके कह दे अपनी रानी अम्मा से, राजा के पास टाइम नहीं है। कैसा निर्दयी पति है। मेरा घर वाला होता तो ऐसी बात पर 2 थप्पड़ मारकर अकल टिकाने लगा देते। भगवान न करे मंत्री जी कि ऐसे आदमी के साथ किसी औरत का ब्याह हो। ओए, मैंने तेरी रानी से इसलिए ब्याह नहीं किया कि वो बाथरूम में नहाते हुए धड़ाम से गिर पड़े और मैं उसके सिराने बैठकर उसकी खोपड़ी और हाथ पाँव की मालिश करूं। भगवान जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। मुंह लड़ाती है। जा, आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। हाय हाय मैं राजा साहब, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। मैं आपकी नौकरी ही नहीं करती तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? हम तो रानी जी के मायके से दहेज में आए हैं। मंत्री जी, ये चुड़ैल कहाँ से मेरे दिमाग खाने आ गई? भगाओ इसे। अरे ये किसी बड़े आदमी की नौकरानी नहीं, नौकरानी की नहीं, रानी की नौकरानी है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले ये धरती क्यों नहीं फट गई? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा तुम्हारी नौकरानी है। मैं अभी जाकर कहती हूँ रानी अम्मा से और तुम्हारी होश ठिकाने लगाती हूँ। यही खड़े रहना, रोगी भूत। हाँ। मंत्री, देश बंधु के स्वागत के लिए क्या सोचा है? कुछ नहीं महाराज। मंत्री, तुम मूर्ख हो। हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। अब सोचो और बताओ कि मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए कैसे कपड़े पहनूं? चांदी के?
और सम्राट देशबंधु ने सोने के कपड़े पहन लिए तो आप सोने के कपड़े बनवाइए। और सम्राट देशबंधु ने हीरे के कपड़े पहन लिए तो 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 मंत्री फौरन देश प्रदेश से बड़े बड़े दर्जी बुलाओ और मेरी पेशी में हाजिर करो। देश प्रदेश से बड़े बड़े दर्जी बुलवाने में तो कुछ समय लगेगा महाराज। तुरंत घोषणा करवाओ, खुद दौड़ो, आदमी दौड़ाओ, दिमाग न चले तो हाथ पैर चलाओ। और हाँ, खंडाला में अपने जासूस भेजकर पता लगाओ कि राजा देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए क्या आइटम बनवा रहे हैं। जाओ। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, टेलर मिले क्या? बहुत सारे दर्जी मिले। ठीक है, एक एक करके सबको पेश करो। नंबर 1 को पेश करो। नंबर 1 हाजिर हो। कोलकाता का आमी छैला, मेरा दादा परदादा के हाथों सेजा से राजू दौला, बांगले जादू जानी, हाथ लगाए कापोद के तो कापोद बने सोना गहना, जिसने पहना। बस बस, देख बेटा, मैं सिराजुद्दौला नहीं हूँ, मेरा नाम रेशम लाल। अब बता, क्या है तेरे पास माल? महाराज लाल पहाड़ का शांतिपूर्ण दूती दोकार मलमल। अरे तू मुझे मलमल पहनाएगा? देख भाई, मलमल की तो मैं मौजे पहनता हूँ। मंत्री, इसको बाहर करो। आई शाउट गेट आउट। इसे ले जाओ। नंबर 2 को पेश करो। नंबर 2 हाजिर हो। मैं पंजाब दा बंदा, वाहे गुरु के आशीषों से फुलकारी का धंधा, ऐसी ऐसी करू कढ़ाई, बुड्ढे दी होए कुड़माई। मंत्री, इसको हटाओ यार, ये पंजाब वाला बंदा बहुत खतरनाक है, ये मुझे लुंगी पहना देगा। आई शाउट गेट आउट। ले जाओ इन्हें। नंबर 3 को पेश करो। नंबर 3 हाजिर हो। अपन मुंबईया खाली पीली बंकस बोमे क्या? तेरी क्या स्पेशलिटी है भाऊ? अपन मुंबई से आया क्या? टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस बनाया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़ी गुड़ी क्या? देख भाऊ, मेरे घर पे टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस नहीं बनाना है, ड्रेस को टॉप मोस्ट बनाना है। बता कैसे करेगा? कपड़ा लाइट मरेगा, झकास क्या? नीला पीला लाल हरा, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या? कैसे? रंग बिरंगी लैंप लगाऊंगा क्या? मतलब तू मेरी ड्रेस पे करंट डालेगा? इडियट, वो करंट मुझे लग गया तो? मंत्री, इसको निकालो भाई, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे मार डालेगा। इन्हें ले जाओ। नंबर 4 को पेश करो। नंबर 4 हाजिर हो। अन्ना जी, मैं मद्रास से आया जी, साउथ सिल्क लाया जी, सुंदर जी, पक्का जी। गन्ना जी? गन्ना जी नहीं जी, अन्ना जी। ओ अन्ना जी, आलू बंडा काया जी? काया जी, स्वादम जी। गधी का दूध पिया जी? हैं? गधी का दूध जी? मारूंगा धक्का जी। मंत्री, इसको बाहर निकालो। इन्हें ले जाओ। नंबर 5 को पेश करो। नंबर 5 हाजिर हो। मैं पटना से आया हूँ दर्जी, चौका है काम नहीं ना फर्जी। तू क्या जाने मेरी मर्जी? हमरा सूट पहनकर हमरा राजा अमेरिका चला गया और गट गट अंग्रेजी बोलने लगा। आओ बम्बई का कटना हीरोइन लोग नाच गया उसका फुल बढ़िया में। जानता हूँ बेटा,
फुलवारी में नाच देखते देखते तुम्हारा राजा फूलों खा गया, बाड़िया खा गया। भाग, पटना मुझको पसंद नहीं। आई शाउट, गेट आउट। राजा है कि छछंदर, अटना दूर से ना आया हूँ, कोनो सीधा गाड़ियों नहीं है, हेने बदल तो होने बदल, छाट तो गाड़ी करके पहुँचना होता है। मंत्री, भगाओ इसे। जाओ रे। हुट हुट। मंत्री, मैंने तुमसे अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था, ये कहाँ से नमूने पकड़ लाए? भगाओ इसे। जी महाराज। मंत्री, तुम मूर्ख हो। हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। मंत्री, अब ये बताओ कि दूध खंडाला से कोई खबर लाया? हाँ लाया, क्या लाया? भयानक खबर लाया। क्या? सम्राट देशबंधु फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन के लिए भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं, ग्लोबल मिलेनियम सूट। क्या? ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस? हाँ महाराज, कुछ इंटरनेशनल आइटम भी डाले हैं। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम? हाँ महाराज। ऐसे में तो मैं फैशन कंपटीशन हार जाऊंगा। तब महाराज? तो आप मेरे लिए भी इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम कीजिए। अरनाखेड़ा में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगा महाराज? आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ और सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं लोकल और देसी ड्रेस पहनकर उब गया हूँ, अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूँ। इसीलिए जो इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा उसे टेंडर दे दिया जाएगा। जाओ। महाराज, बाहर दूर देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं। मंत्री, जी महाराज। बाहर दूर देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं, उनको बुलवाओ। आइए बॉस, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता महाराज, वो लोग बड़ी भयानक बोली बोलते हैं। ठीक है, मैं खुद बुलाता हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना, आइए आइए। श्रीमान, क्या आप लोग बहुत दूर देश से आए हैं? बहुत दूर देश से। वेरी गुड, लेकिन हैट्स को पहनाना और उतारना सिर्फ हम जानते हैं, तो इस वजह से सूट बना देने के बाद भी हमें स्थायी रूप से आपके राज्य में बस जाना होगा। रेजिडेंट मल्टीनेशनल। आई शाउट, नो डाउट। मंत्री, इनके लिए छोटा वाला महल खाली करवा दो, ये वहीं रहेंगे, और इनको गृहस्थी जमाने के लिए 500 वाले 2 लाख नोट दे दो। जी मालिक, हम आपको इस सूट की असली खासियत तो बताना ही भूल गए। असली खासियत? वाह, बताओ भाई, जल्दी बताओ। यह एक जादू का सूट होगा, मैजिकल सूट। यह सूट इतना बारीक होगा कि गधों और मूर्खों को दिखाई नहीं देगा। यह सूट सिर्फ असली विद्वान, खानदानी रईस और जीनस ही देख पाएंगे। आई शाउट, वर्कआउट। राज्य भर में मुनादी करवा दो कि मैं अगली पूर्णमासी को राजा देशबंधु के साथ फैशन कंपटीशन के लिए जादू का सूट पहनूंगा। इन्हें ले जाओ। चलिए। सुनो सुनो सुनो, राज की रैयत सुनो, अगली पूर्णमासी को हमारे राजाधिराज जादू का सूट पहनेंगे। इस सूट को बनाने के लिए 3 मल्टीनेशनल भाई राज्य में पधारे हैं। तो जादू की सूट की असली खासियत होगी कि ये मूर्खों, फटीचरों और नकली रईसों को नहीं दिखाई देगा।
सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे मल्टीनेशनल, मेरे मल्टीनेशनल। आज मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम सो सैड। जीवन में सुख दुख तो आता रहता है मंत्री जी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे में आप लोगों को देने के लिए 500 के 4 लाख नोट है और ये पैसे मुझे आप लोगों को देने हैं, तो जल्दी दीजिए। इसी से तो मैं दुखी हूँ। राजा का सूट, राजा का पैसा और दुखी आप क्यों? क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास करता हूँ, इसलिए अपने लिए नहीं आप सबके लिए दुखी हूँ। इसमें मिल बांटकर खाने का क्या सवाल है? ये पैसा तो सूट के लिए है, इसी से तो मैं दुखी हूँ। इडियट, इसमें ना तो कोई कपड़ा दिखाई देता, ना दादा, ना मिशन, तो सूट कैसे बने डरे? तब तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे मंत्री जी। बदमाश, मैं राजा के विरोधी पार्टी वाले से बोलकर तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दूंगा। मैंने अपना परसेंटेज रख लिया है, ये रखो और चुप रहो। यहाँ तो जबरदस्त राग रंग चल रहा है। बड़ा दासू चरखा है रे तुम लोगों के पास। इस चरखे पे राजा साहब के लिए जादू का सूट बन रहा है। इस कपड़े को पहनकर तुम्हारा राजा स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। हाय दैया, तो मेरी रानी के लिए एक लुगरा बना दे भैया। इसके लिए पहले राजा साहब से पूछना पड़ेगा। बासमती हो रानी अम्मा, ये चरखा तो बहुत सुंदर है ना? हो रानी अम्मा। मेरे राजा के सूट का कपड़ा कितना सुंदर है। हाय भैया। हो रानी अम्मा। बासमती हो रानी अम्मा। इनसे जरा पूछ तो मेरा ड्रेस बनाने को ऑर्डर करूं तो कितना दिन लग जाएगा? असल में क्या है कि वो दिन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो पैसे बहुत लग जाते हैं। इनसे बोल कि पैसा तो मेरा पैरों की धूल है, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा, पर पहले इस चरखे से राजा के कपड़ा उतारकर मेरा लुगड़ा बनाइए। अब ये कपड़ा उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बासमती हो रानी अम्मा। इनसे बोल कि ये रानी के पेशे में है, किसी भिखारी की नहीं। बासमती जादू का सूट बनाने की खुशी में इन मल्टीनेशनल भैया लोगों के लिए जादू की कीट तो ले आ। अभी लाई रानी अम्मा। ये लो रानी अम्मा। हाय दैया, ये कपड़ा कहाँ गायब हो गया रानी अम्मा? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया? कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया तो इन्हें जादू की कीट खिला दे। ये रे सतरंगा कपड़ा, ये रे गुलाबी किनारे, ये ले झिलमिल झिलमिल चांद तारे, ये देख जादू, ये ले बोल्ड, ये है ब्यूटीफुल, और ये ले मल्टी की पलटी। कौन है? कौन है? हम हैं मार्सी की अम्मा। आओ आजकल तुम्हें इससे भी बड़ी वाली खीर खिलाऊंगी। आई शाउट गेट आउट। चुप बोंदू। क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? रानी और नौकरानी ने झाड़ू मार मार कर सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया। क्या
रानी कपड़ा देखने आई थी? आई थी। रानी को कैसा लगा मेरा जादुई कपड़ा? इतना अच्छा कि अपना लहंगा बनवाने की जिद ने बने बनाए कपड़े का नाश कर दिया। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि ये जादू का सूट है, जोरदार चीज। अब फिर से सूट बनाने में कितना समय लग जाएगा? बोलते हुए शर्म आती है श्रीमान, पर फिर से उतने ही पैसे भिजवा दीजिए तो इस बार स्पेशल ओवरटाइम करके कल तक ही सूट तैयार कर डालेंगे। मंत्री, इनके लिए 500 वाले 20 लाख नोट का तुरंत इंतजाम करो। जी महाराज। अब आओ क्या? महाराज, आने से पहले ये बताएं कि आप नहाकर आए हैं या नहीं। नहाया है भाई, नहाया है। अब आओ। आप अकेले आए, कपड़ा पहनकर आए हैं क्या? तो क्या बिना कपड़े पहने आता भैया? देखिए श्रीमान, हमारा मल्टीनेशनल सूट आपके लोकल फर्नीचर कपड़ों के सामने पड़ेगा तो कुम्हला जाएगा। लो डेलिकेसी, इसलिए आप अपने कपड़े उतार कर इस हॉल में आइए। अरे भैया, सारे के सारे कपड़े कैसे उतार दो? पैंट पहने रहिए, पैंट मल्टीनेशनल है। उतारो भैया। कैसा लगा श्रीमान? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब इसे पहना दीजिए। कैसा लगा श्रीमान? डैम ब्यूटीफुल। और अब महाराज। ग्रैंड एंड गाला। महाराज, अब आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? यह आपके लिए नहीं, मूर्खों के लिए है, जिससे वो कुछ तो देख सकें। अब आप लोग अंदर आ जाइए। कैसा लगा मंत्री? बहुत सुंदर महाराज, इतना सुंदर थी मुझे मूर्छा आ गया। महाराज, अब आप अपने शहर की गलियों का एक चक्कर लगा लें। चलिए मंत्री जी, चलते हैं। सावधान, महाराज रेशमलाल अपने फैंसी फैशन ड्रेस के साथ नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। मंत्री, ये सब मुझे देखकर चुप क्यों है? मेरी सूट की तारीफ क्यों नहीं करते? ये सब फर्नीचर और मूर्ख है महाराज, इनको आपका स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं देता होगा। हमारे राज्य में इतने फर्नीचर और मूर्ख हैं, तो रईस और विद्वान कौन है? हम लोग। क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा हैं। क्यों हंसता है रे मूर्ख फर्नीचर? कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? अरे मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? तुझे पता है मैं राजा हूँ। अच्छी तरह बताइए कि आप राजा है, अभी पता है कि राजा नंगा है। अरे मूर्ख, तुझको मेरे शरीर पे कपड़े नहीं दिखते? कुछ और डबल ना दिखे। ये मूर्ख, ये स्वर्गीय सूट है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। मुझे तो आपके शरीर पर सिर्फ पैंट, माला और करदम दिखता है। मंत्री, उन मल्टीनेशनल दर्जियों को बुलवाओ। चौकीदार, जल्दी बुलाकर लाइए। महाराज की जय हो। सम्राट देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। ठीक है, चलो। पता है ये एयर कंडीशन सूट है,
जो गर्मी में ठंडक देता है, ठंडक में गर्मी, न आग से जलता है न भीगता है पानी से। भीगना नहीं, ये लीजिए। पानी डालता है रे, पूरी पैंट गीली हो गई। भीगता नहीं तो भीगे कैसे? क्या हुआ? कहाँ है हमारे अतिथि मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर? अन्नदाता, मल्टीनेशनल दर्जी तो वहाँ नहीं है। महल सुना पड़ा है और वहाँ एक चिट्ठी मिली है। मंत्री, जल्दी से चिट्ठी पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है, तेरे शरीर पर एक कच्चा हार गर्दन के सिवा कुछ नहीं है। कपड़ों के नाम पर तुझे नन्हा करने में हमें बहुत मजा आया और इसके बदले हमें करोड़ों रुपए मिले। इसके लिए हम तुझे करोड़ों धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। मैं नंगा हूँ? नहीं महाराज, आप पैंट पहने हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। तो कहाँ से जाऊँ? इस रास्ते से जाइए अन्नदाता। मूर्ख, इस रास्ते पर तो सम्राट देशबंधु की सवारी आ रही है। तो महाराज की जय हो। महामहिम देशबंधु जी महाराज पधार चुके हैं। महाराज कहाँ है? महाराज राजा रेशम लाल तो यहाँ नहीं है। मंत्री जी, महाराज कहाँ है? सम्राट देशबंधु की जय। महाराज वही है। महाराज यहाँ है। क्या मतलब? महाराज यहाँ है, सामने आइए महाराज। कैसे आऊँ मंत्री? चिंता न करे, जैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? सामने तो आइए महाराज, हम सब एक हैं, देखिए। मेरे स्वागत समारोह में आपका यह रूप। मेरी पैंट तो पैंट है, पर आपकी पैंट क्या है? मुझे दुख है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है, इसीलिए आपको मेरे शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। ग्लोबल मिलेनियम सूट, जिसे बनाया है खंडाला के विश्व प्रसिद्ध नेशनल फैशन फैक्ट्री के मैनेजरों ने। तो ये भी मल्टीनेशनल सूट है जिसे बनाया है मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर ने। ये भी कम मानसिक स्तर वालों को नहीं दिखता। आपका सूट भी एयर कंडीशन है ना? एयर कंडीशन और एयर टाइट भी, सन प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। बस पानी से नहीं भीगता होगा ना जलता है आग से। बेटा, तेरे मग्गे में पानी बचा है? जी महाराज। डाल भी दो बेटा, जैसे मेरे पैंट पे डाला था। ये लीजिए। ये क्या मजाक है? पूरा भिगा दिया। भीगता नहीं तो भीगा कैसे? आइए महाराज, चलिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।